So, according to numerical number 6, in an ionic crystalline solid, atom of element Y form HCP lattice, hexagonal close packing lattice. Okay. So, given data, it is HCP, hexagonal close packing lattice. ऐसा आपको मिलता है. The atom of element X occupy 1/3 of tetrahedral ovoids. The atom of X element X. So उसके अंदर देखिए element X element है और it occupy 1/3 of tetrahedral ovoids. It occupies 1/3 of tetrahedral ovoids. Okay. Element X occupies 1/3 of its tetrahedral ovoids. What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास. What is the formula of the compound? Okay. In an ionic crystalline solid, ionic crystalline solid है, atoms of element Y form HCP lattice. Element यहाँ पे element Y भी है और वो HCP तैयार करता है. HCP जो है HCP crystal lattice Y element तैयार करता है. X element occupied 1/3 tetrahedral ovoids. What is the formula of the compound? तो इसके बारे में ये न्यूमेरिकल है. ठीक है. तो I would like to listen from your side कि how many amongst you are clear with what are the tetrahedral ovoids and what are the octahedral ovoids. उसके बारे में कितने लोग clear है आपने से? So let me know how many amongst you are clear with tetrahedral ovoids and octahedral ovoids. Those who know tetrahedral ovoids and octahedral ovoids only can understand the topic what we discussing today, the numerical what we are discussing. और ये जो है ये JEE point of view बहुत ज़्यादा important. So this is very important JEE point of view. So let me know how many amongst you are clear with this tetrahedral ovoids and octahedral ovoids. Yes, बोलिए. Excuse me, sir. Yes, yes. So I don't have any idea about that. Yes, that is that. For that reason only I asked it. How many amongst you know the tetrahedral? Because मैंने cover किया था close packing के arrangement के. लेकिन शायद कुछ लोगों ने उस टाइम सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है. So that's why we need to understand that part. कि how many amongst you are clear with this tetrahedral ovoids and octahedral ovoids? तो आपने बताया. बाकी rest people please know. Let me know how many amongst you are clear with this tetrahedral ovoids and octahedral ovoids. Yes, anyone knows what is tetrahedral ovoid, what is octahedral ovoid? So accordingly we can go ahead. बोलो अथर्व बोलो. Sir, I also don't know. Yes please. हाँ बोलो. अथर्व आप बोलो. What are tetrahedral ovoids? What are polygon octahedral ovoids? These are the spaces or empty spaces in a while we do the stacking of layers in a hexagonal close packing arrangement in 3 dimensions. Like if we arrange it in a to form a tetrahedral void, the void formed is in a tetrahedral and it is covered by a shape called tetrahedron. It is a kind of a triangular void, and when octahedron is formed, the whole both the stacking of layers is a bit of a different, and it will create a shape or a void called octahedral, and it is covered by a shape known as octahedron. There are 2 types of different voids, and if HCC or CCP or FCC structure contains n particles, then there are twice the number of tetrahedral voids and half the number of octahedral voids.
I know only this much. Very good, very good. So you are almost clear with this concept. What is the tetrahedral roots? What are the octahedral roots? So it's good to listen to that. Baki rest people, please come to know what are the tetrahedral roots and what are the octahedral roots. और ये टॉपिक जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द रीजन बिहाइंड दैट कि जेई नीट के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसलिए जेई नीट में भी इंपॉर्टेंट है और हमारे बोर्ड में भी न्यूमेरिकल्स है. हमने ऑलरेडी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट देखे थे, क्रिस्टल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, जिसके अंदर लीनियर अरेंजमेंट, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट देखा था. शायद वो सब आपको याद आता होगा. तो जब हम टू डायमेंशनल के अंदर चलते हैं तो अलग केस था. तो लीनियर अरेंजमेंट, अब देखिएगा कि पहला जो था वो लीनियर अरेंजमेंट था. लीनियर अरेंजमेंट क्या था कि पार्टिकल्स आर अरेंज्ड लीनियर. ये था हमारा लीनियर अरेंजमेंट. दूसरा था हमारा टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, जिसके अंदर दो तरीके थे. This is first layer like this one, that is called as A layer, or while putting second layer that has to be put in a A way. वो A तरीके से रखा जाता था. Stacking of the particle is exactly one of the other. ये तरीके से रखा जाता है. There is also A layer. So this is called as AA square close packing arrangement. और 2D के अंदर ये पहला टाइप था. 2D के अंदर का दूसरा टाइप जो है, this is called as first type, और second type था कि we have this particles. Okay, ये पहला layer है, that is called as A layer. While putting second layer, that has to be put in a B way. तो particles एक दो के ऊपर एक particle रखा जाता है like this. फिर ये देखो दो के ऊपर एक particle like this one. So this is A layer, this has to be B layer, this has to be A layer. So two-dimensional close packing arrangements के अंदर x-axis, y-axis two-dimensional. This is AA. All layers are identical in two-dimensionally. Here first layer is A, second layer has to be B because दो particle के ऊपर एक है. यहाँ पे every particle के ऊपर stacking है one over the other. So this is called as A type of square close packing, and this is called as AB type of square close packing. We can say like this. या फिर hexagonal भी बोल सकते हैं आप. And while putting it three dimensionally put करते समय वापस दो तरीके से आते हैं. तो हमने देखा था 363 का एक देखा था और 6336 का एक देखा था. वो टाइप का अरेंजमेंट होता है. तो इसके कारण से आप देखिएगा कि एक अरेंजमेंट ऐसा होता है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वुड्स. पहला जो है दैट इज टेट्राहेड्रल वुड्स. तो होता क्या है कि पहले लेयर को मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया जो ये है, ओके, और ये उसका बी लेयर है. सो दिस इज यू कैन से ए लेयर एंड दिस यू कैन से बी लेयर. ए बी टू डायमेंशनल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. व्हाइल पुटिंग द थर्ड लेयर आई पुट एग्जैक्टली ओवर दिस पार्टिकल इसके ऊपर रख दिया. अभी ये जेड एक्सिस पे होगा. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इस तरीके से पार्टिकल मिले आप. अभी ये जो अरेंजमेंट दिखता है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, क्योंकि ये चार पार्टिकल यहाँ पे दिखते हैं. चार पार्टिकल, तीन पार्टिकल नीचे के लेयर में, उसके ऊपर एक पार्टिकल, तीनों के सेंटर. सो ये चारों पार्टिकल के हम सेंटर कनेक्ट करते हैं तो आपको इस टाइप का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको मिल जाता है. सो दीस आर द सेंटर्स कनेक्ट करेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. हर किसी भी इसके बीच के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है. तो यहाँ पे इनका सेंटर से अगर हम वो पार्टिकल के सेंटर कनेक्ट करते हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलता है. और दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बाय कनेक्टिंग द सेंटर्स ऑफ द पार्टिकल्स. एंड whatever the space left empty is called as a tetrahedral whole space. ये चार पार्टिकल के बीच में जो लेफ्ट एम्प्टी स्पेस है, जो एम्प्टी स्पेस बचा है, उसे कहते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल ओवल स्पेस. जो दिखता है आपको, जैसे कि हमने तीन पार्टिकल देखे. अब देखिए मैं अगर ऐसा मानता हूँ कि तीन पार्टिकल ड्रॉ करता हूँ, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज द थर्ड पार्टिकल. ये पार्टिकल मस्ट टच ईच अदर लाइक दिस. तो यहाँ पे देखिए ये स्पेस दिखता है, दिस इज एम्प्टी स्पेस. ये तीन पार्टिकल के बीच में है और तीन पार्टिकल का अरेंजमेंट ट्रायंगुलर होता है. That's why it is called a triangular ovoid space. तीन पार्टिकल के बीच में स्पेस है ट्रायंगुलर, बट ये सिर्फ 2D में होता है. लेकिन असल में तो कोई 2D पार्टिकल होता नहीं, 3D होता है. 3D मतलब एक पार्टिकल उनके ऊपर रखना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे रख दिया. तो अभी चार पार्टिकल का अरेंजमेंट इस तरीके का बनता है, दैट इज टेट्राहेड्रल. और उनके बीच में जो ये जगह बचा है चारों पार्टिकल के बीच में, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ओवल स्पेस. दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ओवल स्पेस. और टेट्राहेड्रल ओवल स्पेस के बारे में क्या होता है कि नंबर ऑफ tetrahedral ovoid spaces is equal to twice the number of atoms. Twice the number of atoms. जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, उससे डबल नंबर टेट्राहेड्रल ओवल स्पेस क्रिएट होते हैं. तो इसका मतलब है अगर एक एटम आया हुआ क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में टेट्राहेड्रल, तो 1 into 2 इतने टेट्राहेड्रल ओवल स्पेसेस क्रिएट होते हैं. सो हमें टेट्राहेड्रल ओवल स्पेसेस आर प्रेजेंट ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में कितने एटम आए, उसके ट्वाइस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ओवल स्पेसेस आर क्रिएटेड. ये लाइन याद रखिएगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ओवल स्पेसेस आर क्रिएटेड
of the original number of atoms already involved in the close packing arrangement. उसके बाद होता है octahedral word space. Octahedral word space क्या होता है आप देखिएगा कि this is the arrangement where we have वापस वही hexagonal टाइप का 2D अरेंजमेंट होता है ये वाला. अब ये 3 पार्टिकल, अब ये 3 पार्टिकल के ऊपर एक रखेंगे सेंटर में तो ये अरेंजमेंट बनता है, और इसके ऊपर 3 पार्टिकल रखेंगे हम लोग इस तरीके से, 3 पार्टिकल, ये 2 और यहाँ पे 3. तो नीचे के लेयर में 3 पार्टिकल है, उसके ऊपर 3 पार्टिकल है, ये टोटल 6 पार्टिकल. यहाँ पे आपको टोटल 6 पार्टिकल दिखाई दे, 3 बिलो लेयर में, 3 उसके ऊपर लेयर में दिखाई दे, उसके ऊपर है ये 6 पार्टिकल. और 6 पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है उसे ऑक्टाहाइड्रल वुड स्पेस बोला जाता है. ऑक्टा मतलब 8 एंड हाइड्रल मतलब साइड्स. तो ये अगर कनेक्ट करेंगे तो 8 साइड वाला एक स्ट्रक्चर बनता है, एक ज्योमेट्री बनता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री. ये जो 6 पार्टिकल है, 6 पार्टिकल के सेंटर्स अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ऑक्टाहाइड्रल वुड स्पेस मिलता है, और ऑक्टाहाइड्रल वुड स्पेस और ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री मिलता है. और इनके बीच में जो स्पेस बचेगा यहाँ पे 6 पार्टिकल के बीच में, नीचे से 3 पार्टिकल, ऊपर से 3 पार्टिकल, और ये 6 पार्टिकल के बीच में जो स्पेस बचता है उस स्पेस को हम लोग ऑक्टाहाइड्रल वुड स्पेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टाहाइड्रल वुड स्पेस या ऑक्टाहाइड्रल वुड्स, उन्हें ऑक्टाहाइड्रल वुड्स कहा जाता है. अभी जिस तरीके से हमने देखा कि टेट्राहाइड्रल वुड स्पेस 4 पार्टिकल के बीच में होता है, वैसे ऑक्टाहाइड्रल वुड स्पेस 6 पार्टिकल के बीच में होता है. कितने टेट्राहाइड्रल होल्स क्रिएट होते हैं या कितने टेट्राहाइड्रल वुड स्पेसेस क्रिएट होते हैं? तो ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में जितने एटम्स इन्वॉल्व है उसके डबल टेट्राहाइड्रल वुड स्पेस क्रिएट होता है. और ऑक्टाहाइड्रल कितने होते हैं? तो ऑक्टाहाइड्रल वुड स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्वड इन दिस. जितने नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर इन्वॉल्व है उतने ही होते हैं. मतलब अगर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में एक एटम है तो एक ही ऑक्टाहाइड्रल वुड स्पेस क्रिएट हो. यहाँ पे अगर 2 एटम आते हैं तो 2 ऑक्टाहाइड्रल वुड स्पेस क्रिएट हो. यहाँ पे 3 एटम आते हैं तो 3 ऑक्टाहाइड्रल वुड स्पेस क्रिएट हो. सो ऑनवर्ड्स. तो n नंबर ऑफ एटम्स आते हैं, n नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वुड स्पेस आर क्रिएट. यहाँ पे n नंबर ऑफ एटम्स है, ट्वाइस n टेट्राहाइड्रल वुड स्पेस आर क्रिएट. समझ रहे हैं आप लोग? तो इफ n number of atoms are involved, then twice n tetrahedral word spaces are created. If n number of atoms are involved, same number of octahedral word spaces are created. So this is, you can say, tetrahedral space and octahedral space. ऐसा उसे कहा जाता है. अभी हमारे न्यूमेरिकल के अंदर क्या कहा गया है देखिए. अभी न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं. So hope everyone got the concept of tetrahedral word space and octahedral space. 4 पार्टिकल के अरेंजमेंट से जो बनता है उस बीच में जो स्पेस है उसे टेट्राहाइड्रल वुड स्पेस कहा जाता है, और 6 पार्टिकल के कारण जो बनता है उसे ऑक्टाहाइड्रल वुड स्पेस कहा जाता है. यहाँ पे कितने टेट्राहाइड्रल ओविड्स तैयार होते हैं? तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उससे ट्वाइस टेट्राहाइड्रल वुड स्पेसेस तैयार होते हैं, और जितने नंबर ऑफ एटम्स क्लोज पैकिंग में आते हैं उतने ही ऑक्टाहाइड्रल वुड स्पेस क्रिएट होते हैं. ओके, सो उसके आधार पर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. अभी न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो सॉल्यूशन की तरफ चलते. आप बताइए न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है? एलिमेंट फॉर्म hexagonal close packing arrangements, and the Y element is involved in the hexagonal close packing arrangement, whereas element X occupies 1/3 of tetrahedral word spaces. 1/3 of tetrahedral word space कौन acquire कर रहा है? 1/3 of word spaces X acquire कर रहा है 1/3 of word spaces. ठीक है ना? So element Y form HCP structure and element X acquire 1/3 of tetrahedral word spaces, है ना? So अभी tetrahedral word spaces कितने होते हैं, है ना? We have to discuss कि how many tetrahedral words are present. So हम कह सकते हैं element Y है, so tetrahedral total tetrahedral ovid spaces is equal to total tetrahedral ovid spaces is equal to 2 into Y. कितने होंगे? 2 into Y. इतने total tetrahedral ovid space होंगे 2 into Y, because Y acquire the HCP. Okay, Y forms the HCP structure, and that's why total number of atoms you can say it's Y. So tetrahedral ovid spaces क्या होंगे? 2 into Y. इतने total ovid spaces होंगे. That is called tetrahedral. Now element X occupy. X क्या occupy कर रहा है हम जानते हैं. X occupy
1/3 of tetrahedral void spaces, है ना? Element occupy 1/3 of void spaces. 1/3 of void space. Element X occupy 1/3 of void space. ये इतना वहां पे acquire कर रहा है. So number of atoms of X. Number of atoms of X is equal. Number of atoms of X कितने होंगे? So ये जो है 2y total number of atoms है, that is what we can say, इतने हैं, and that is multiplied by 1/3 of this. So 2y into 1/3 इतना नंबर आ जाता है. देखिएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं हमारे. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है यहाँ पे हमने देखे टेट्राहेड्रल वोइड स्पेसेस 2y है, 2 into y. Out of that 1/3 of void spaces are acquired. So total number of atoms of X कितने होंगे? X के कितने होंगे? तो 2y into 1/3 इतने होंगे. ये total number of atoms out of this 1/3 is acquired. So 2y into 1/3 is, you can say, total number of X इतने हमको मिल जाते हैं. Now अभी हम लोग X to Y रेशियो अगर फाइंड आउट करते हैं. So the ratio of X to Y है ना. रेशियो X to Y अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है? ये जो फिगर मिलता है आपको, दिस इज 2y/3 है ना, इनटू 1x, ये मिलता है 1x इतना मिलता है, isn't it? सो ये हमको रेशियो मिलता है. सो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? फिर देखिए आप लोग, अरे सॉरी यहाँ पे y आएगा ना, यहाँ पे y आएगा. ओके, क्योंकि x के एटम ये है तो y आएगा. इज इक्वल टू कितना आएगा? 2/3 is to 1. तो 2/3 is to 1 मतलब क्या आएगा आपका? X 2/3 is to 1y. This is the ratio. This is the ratio आएगा. तो इसका मतलब है X to Y3. X to Y3. This is your formula. Molecular formula of the compound. Ratio है 3 इस तरफ चला गया, thrice y बनेगा, X2 बनेगा. So in that sense X3 Y3. This is the molecular formula. आप रेशियोज का लॉ यूज कीजिए और रेशियोज के आधार पर ही न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए. इस तरीके से मैं एक बार वापस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहूंगा, आपके लिए एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बिकॉज इस टाइप के काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इजी फॉर यू अकॉर्डिंगली. ठीक है ना. सो आप देखिएगा इस न्यूमेरिकल के अंदर कहा गया है कि a compound forms HCP structure. Element Y form HCP structure, whereas element X acquires the 1/3 of its tetrahedral void spaces. 1/3 of its tetrahedral void spaces, and the formula of the compound is what? ऐसा पूछा गया है. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ चुके हैं क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स के अंदर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर पता है तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वोइड स्पेसेस कितने हैं, हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वोइड स्पेसेस कितने हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं ना. और इसलिए हमें पहले निकालना पड़ता है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, और हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वोइड स्पेसेस आर प्रेजेंट, हाउ मेनी टोटल यू कैन से टेट्राहेड्रल वोइड स्पेसेस और ऑक्टाहेड्रल वोइड स्पेसेस निकालने पड़ते हैं. इसलिए हमने क्या किया, टोटल टेट्राहेड्रल वोइड स्पेसेस जो होते हैं that is number of atoms y है into 2 है, because number of atoms are y into 2 है. Okay, so 2y is the total number of tetrahedral void spaces. Out of that, how many are acquired? How much are acquired by X then? Out of that, X atom acquires 1/3 of the void spaces. हमारे पास है कितने? 2y इतने void spaces. उसमें से 1/3 acquire होते हैं, X acquire करता है. तो total X के atom कितने होते हैं? तो X के atom कितने होंगे? तो 2y into 1/3 होगा. 2y into 1/3, that is total number of atoms of X होते हैं. And we found that is 2y into 1/3 मतलब 2y/3. 2y/3 is the total number of atoms of X. तो ratio of X to Y क्या होगा? तो 2y/3 is to 1y, जो 1 atom है Y का हमने कंसीडर किया था वो उतना है. So 1y आपको मिलता है, ये रेशियो मिलता है. बस हमने y कैंसिल कर दिया. 2:3, 2/3 is to 1 रेशियो मिल गया X और Y. तो X का एटम है 2/3, Y का एटम 1 दिखाई देता है. तो इस तरीके से रेशियो सॉल्व करते हैं. तो X2 3 उस तरफ कैरी करेंगे रेशियो के रूल के हिसाब से. तो X2 Y3 is the formula of the compound. What you get it? समझ में आ रहा है आपको? So that is what we can solve the numerical regarding tetrahedral void space and octahedral void space. इस टाइप के काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, JEE नीट में भी इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं. तो सबसे पहले
टेट्राहेड्रल वुड स्पेस का और ऑक्टाहेड्रल वुड स्पेस का कॉन्सेप्ट समझे। टोटल टेट्राहेड्रल स्पेसेस कितने होते हैं? तो ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स। ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं? तो जितने नंबर ऑफ एटम्स क्लोज पैकिंग में होते हैं उतने ही होते हैं। तो यहाँ पे वाई एटम्स थे तो ट्वाइस वाई क्या बनेंगे आपके टेट्राहेड्रल वुड स्पेसेस, एंड ऑक्टाहेड्रल कितने बनेंगे? उतने ही बनेंगे, वाई इतने बनेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे 1 वाई लिखा है। दिस आर ऑक्टाहेड्रल वुड स्पेसेस, क्योंकि x अगर टेट्राहेड्रल वुड स्पेस एक्वायर कर रहा है तो y हैज टू एक्वायर द ऑक्टाहेड्रल वुड स्पेसेस। समझ रहे हैं आप लोग? एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे 1 वाई हमने लिखा है उस तरीके से। सो अकॉर्डिंगली वी हैव सॉल्व दिस, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रेशियोस। रेशियोस के जो न्यूमेरिकल फंडामेंटल सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दिया। x2y3 इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। दिस कंपाउंड इज xy, atoms of x are 2, atoms of y are 3. This is the answer for this one. Clear? Hope so everyone got clear with this numerical. 6 नंबर न्यूमेरिकल जो आपके बुक के अंदर था उसके हिसाब से वो है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है हाउ आर द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वुड्स आर फॉर्म्ड, जो अभी मैंने सिखाया। 7 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ आर द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वुड्स आर फॉर्म्ड। अभी मैंने बताया, आथर में भी वही आंसर दिया था कि व्हेन अ क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट or stacking of the layers occurs in hexagonal close packing arrangement, at that time how the stacking occurs accordingly the tetrahedral octahedral woods spaces are arranged or formed. So 4 particles are arranged in such a way that to form a tetrahedral geometry, tetrahedral wood space is created. 6 atoms are joined in such a way, joining their centers we get a tetrahedral geometry, and the space left empty in between is called a tetrahedral wood spaces, and that is due to third layer, putting the third layer of HCP, hexagonal close packing arrangement, उसके अंदर वो मिलता है। So that is the conceptual part जो हमने already discuss किया था। 8th क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, देखें जो क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट्स के आधार पर है। नाइन्थ नंबर का न्यूमेरिकल जो यूनिट सेल्स के बारे में बात करते हैं। 9th नंबर का numerical number 9 and given things given numerical number 9 कह रहा है an element with a molar mass 27 gram per mole। कोई तो एलिमेंट है जिसका मोलर मास है 27 ग्राम पर मोल, 27 ग्राम पर मोल ऐसा है। forms a cubic unit cell with the edge length of 405 picometer, so it has the edge length 405 pm picometer, इतना है। If the density of the element is 2.7 gram per centimeter cube, density is equal to 2.7 gram per centimeter cube, gram per centimeter cube। ये हटाता हूं मैं, तो gram per centimeter cube इतना है। What is the nature of cubic unit cell? What is the nature of unit cell? मतलब what is the nature of unit cell? मतलब cubic unit cell, either it will be SCC, either it will be BCC, or either it will be FCC, हमें निकालना है। तो कौन से टाइप का यूनिट सेल उसके अंदर प्रेजेंट है, SCC, BCC और FCC, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, डेंसिटी का फॉर्मूला, कोई बताएगा डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है मेरे पास? यस, डेंसिटी इज इक्वल टू rho is equal to mn upon a cube into Avogadro's number. Very good. This is the formula for the density. तो इसके अंदर हम अच्छी तरह जानते हैं, rho indicates the density, m indicates the atomic mass, n indicates the number of particles, a cube represents the volume, and edge length का क्यूब मतलब volume, and n represents the Avogadro's number। हम अगर number of particles n find out करते हैं, how many number of particles are present in that, simply we can find out the unit cell। हम जानते हैं n is indicating the number of particles। अगर number of particle 1 आता है तो that has to be simple cubic unit cell। n का वैल्यू अगर 2 आता है it has to be BCC, और n का वैल्यू अगर 4 आता है it has to be FCC। so just हमें ये फाइंड आउट करना पड़ता है n, because इसके अंदर देखिए ना, rho density is provided, edge length is provided, molecular mass is provided, n ही है, हम अच्छी तरह जानते हैं। नथिंग जो हमारे पास नहीं वो n है, तो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, n हमें फाइंड आउट करना है तो n इज इक्वल टू बाकी सब इस तरफ भेज देते हैं, तो रो इनटू a क्यूब इनटू Avogadro's नंबर डिवाइड बाय एटॉमिक मास, सो we'll find the n।
अगर हमारा n का वैल्यू 1 आता है तो दिस इज SCC, अगर n का वैल्यू 2 आता है तो दिस इज BCC, और if n का वैल्यू अगर 4 आता है तो दिस इज FCC. दैट इज व्हाट वी गेट हियर. तो हमें एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है n. n indicates the number of particles, and number of particles will give the type of unit cell which it is, either SCC, BCC or FCC. If n is equal to 1, it is SCC. If n is equal to 2, BCC. n is equal to 4, that is FCC. तो अब ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कीजिएगा, है ना. तो यहाँ पे देखिएगा वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इसके अंदर तो n is equal to डेंसिटी का वैल्यू कितना है? डेंसिटी इज 2.7 ग्राम. एजन कितना है? 405. उसका हमें क्यूब करना इनटू एवोगाड्रो नंबर कितना है? 6.022 इनटू 10⁻23 इतना था. डिवाइड बाय एटॉमिक मास कितना है? 27 ग्राम. ये दोनों भी ग्राम है तो यूनिट तो कैंसिल होने वाला है. बस इसे आप सॉल्व करो और इसका आंसर कितना आ रहा है आपका देखिए आप. जैसे आंसर आप फाइंड आउट करेंगे यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग निकाल सकते हैं. व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल? आइदर इट इज SCC और आइदर BCC. तो ये आपको कैलकुलेशन करना है हियर इन दिस न्यूमेरिकल. दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 9. न्यूमेरिकल नंबर 10 गिवन. ओके, 10 न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? एन एलिमेंट हैज अ BCC स्ट्रक्चर. ओके, तो यूनिट सेल का टाइप यहाँ पे दिया है. यूनिट सेल इज इक्वल टू BCC. व्हाट इज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल? एज लेंथ इज 288 पिकोमीटर. Its length is 280 picometer. 280 picometer. Okay. How many unit cells and number of atoms are present in 200 gram of present? How many unit cells? Okay. मतलब number of unit cells is equal to how much? Number of unit cells कितने हैं? And number of atoms कितने हैं? Number of atoms is equal to कितने हैं? किसमें? ये 200 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. 200 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. अभी देखिए इसके लिए सीधा फॉर्मूला है मेरे पास. मतलब ये फाइंड आउट करने के लिए सीधा फॉर्मूला है मेरे पास. सॉल्यूशन हम जब ये सारी चीजें आती है हमारे पास, एज लेंथ आता है, डेंसिटी आ जाती है, तब हम लोगों को BC से मतलब n का वैल्यू मिल जाता है यहाँ पे. दैट इज इसके अंदर BC होने के कारण n मस्ट बी इक्वल टू, यू कैन से हियर 2 ऐसा आ जाता है. ये इससे क्लियर हो जाता है. तो अभी आपको एज लेंथ दिया हुआ है और एज लेंथ के आधार पर हाउ मच नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस. हमें पहले ए निकालना पड़ेगा. ओके, तो वी कैन कैलकुलेट द ए. सीधा फॉर्मूला बेस्ट है इसका. तो वी कैन नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मूला हमारे पास सीधा है. हाउ मच नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट बाय कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. वी कैन कैलकुलेट इट. हम टोटल पार्टिकल्स कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं. हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट? टोटल हमारे पास 200 ग्राम क्वांटिटी दी गई है. तो 200 ग्राम मतलब ये हम उसे मास ले सकते हैं. उस मास के अंदर कितने पार्टिकल्स हम लोग निकाल सकते हैं. सीधा फॉर्मूला बेस्ट है. दोनों भी फॉर्मूले सीधा है. आपकी बुक के अंदर फॉर्मूले परसों हमने लिखे भी दिए थे. सो वी कैन कैलकुलेट ऑन दैट बेसिस. फॉर्मूले के आधार पर हम दोनों भी कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको 200 ग्राम अमाउंट लेना है. हमने x ग्राम का फॉर्मूला देखा था, अगर किसी को याद आ रहा है तो. एटॉमिक मास कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स. तो x ग्राम कंटेन्स हाउ मच नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए कितना आएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 200 into एवोगाड्रोस नंबर. ये आ जाता है. So that will give a total number of particles. और total number of particles आते हैं तो काफी सारी चीजें इजी बनती है. हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स भी निकाल सकते हैं, है ना. और उसका भी फॉर्मूला हमारे पास है. नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है फॉर्मूला. शायद किसी को भी याद आता होगा. वी हैव रिटन ऑल द फॉर्मूलाज. सो दैट मींस दिस न्यूमेरिकल इज इजी. ये फॉर्मूला हमने नंबर ऑफ x ग्राम के फॉर्मेट में लिखा. नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन x ग्राम इज इक्वल टू x into Na. दैट इज एवोगाड्रोस नंबर. रीजन बिहाइंड दैट एटॉमिक मास कंटेन्स Na particles. So 2 gram contains how much particles? That was the question. उसे हम लोग निकाल सकते हैं. So that is the total number of particles it will give you. So ये हम लोगों को मिल जाता है. इससे हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है. So that is numerical number 10. And then we are heading towards the 11th. Distinguish with the help of diagrams
metal conductors, insulators and semiconductors from each other. तो आप जानते हैं ये theoretical question है. How will you distinguish between metal conductors, insulators and semiconductors? उसके अंदर band का diagram था, है ना? Band, conduction band का diagram था. Energy gap, forbidden gap. Metal के बीच में वो overlapping होता है. तो सेमीकंडक्टर के केस में फोरबिडन गैप कम होता है और इंसुलेटर के बीच में फोरबिडन गैप बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन कांट जंप. ये डायग्राम हमने देखे हुए हैं, तो वो याद आता होगा आपको. नेक्स्ट सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल है. ओके, यहां तक ही न्यूमेरिकल. ओके, 10 तक ही न्यूमेरिकल है. 10 तक के सारे फॉर्मूले में न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है. 12th नंबर का क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट आर n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर and why is the conductor of doped n type of semiconductor higher than that of pure semiconductor? Explain with the diagram. N type of negative semiconductor, p type of is a positive semiconductor. The doping of the metal due to electrons or due to positive hole, ये हमने वहाँ पे देखा हुआ है. So everyone knows that is a theoretically we are discussed. 13 number का numerical ये है. Explain with the diagram Frankel defect. What are the conditions for its formation? What is the effect of density? Completely theoretical question है, which already we have covered very well. स्क्वाड की डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट से दो टाइप है, स्टोचियोमेट्रिक, नॉन स्टोचियोमेट्रिक, यूनि इंप्योरिटी वी हैव सीन. प्रॉपर्ली देखे थ्योरेटिकली बुक के अंदर आपको क्लियर आंसर मिलते हैं उसके. दैट इज नॉट द पार्ट व्हिच हैज टू बी टॉट. एंड 14th one, व्हाट इज द इंप्योरिटी डिफेक्ट्स? दैट इज आल्सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग. तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल बेस इतना ही है हमारे पास. सारे न्यूमेरिकल्स आपको मैंने बोर्ड के ऊपर सॉल्व करने के लिए रेडी रखे हैं. आपको बस कैलकुलेशंस करना है, फॉर्मूला लर्न करना है. उसके अंदर वापस एक बार बात दोहराना चाहूंगा, जिन बच्चों को कॉन्सेप्चुअली चैप्टर समझा हुआ है इन्हें न्यूमेरिकल समझना मुश्किल बात नहीं. जिन्हें कॉन्सेप्चुअली नहीं समझा है उनको थोड़ा मुश्किल आती है. पहले कॉन्सेप्चुअली चैप्टर रीड कीजिएगा. दूसरी बात है, हमारे बुक के अंदर सॉल्व न्यूमेरिकल है. मैं एक बार वापस सबको सजेस्ट करता हूँ कि सॉल्व न्यूमेरिकल एक बार देख लीजिएगा. सारे के सारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल हम कर पाते हैं. दैट इज ओनली व्हाट वी कैन डू इट. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड दिस सॉलिड स्टेट इज completely covered now from my side. I declare the chapter done. If you have the difficult doubts, we'll cover in the next lecture. Otherwise, we'll start with some new chapter. Is there any difficult doubt to anyone? Yes, please. If not, then we need to conclude the topic. उसी हिसाब से. Yes, is there any doubt to anyone? Okay, then thank you very much. See you tomorrow. Solve all the numericals. Bye bye.